everyone, I hope you guys are doing well. So we are going to continue with teaching aptitude only. In the previous class, we started a discussion about teaching aptitude. We discussed about teaching and then we talked about the levels. We also talked about the various philosophies of teaching, methods of teaching, what is learner centered, what is teacher centered. तो ये सारी बातें हमने की थी. इनफैक्ट हमने मैक्सिम्स भी डिस्कस कर लिए थे. So today I told you we'll be moving further with the types of teaching, qualities of a good teacher, learner. ये सारी बातें आज की क्लास में हम लोग करेंगे, right? So I hope you guys are aware of the previous class and the status of previous class and उधर जो भी आपको पढ़ना था, you guys have done that. I hope that is something that is done. तो आज की क्लास में then we will be beginning with something new. So is there anyone who wants to ask anything new? कुछ भी ऐसा जो आपको पूछना है. I will give you 2 minutes to ask something. If you want, you can do that. Okay, so I will start with a very important topic today. We will be dealing with a topic called as phases of teaching also. Phases of teaching in this class. Phases of teaching क्या होता है? So जब भी टीचर क्लास में आती है, सबसे पहले वो क्या करेंगी? प्लानिंग करती है, उसके बाद आके एग्जीक्यूशन करती हैं और फिर इवैल्यूएशन करती हैं. सो टीचिंग का हमेशा एक तरीके का सेट पैटर्न होता है जो आपको फॉलो करना ही पड़ता है, अदरवाइज वो एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस खत्म नहीं होगा. अदरवाइज वो प्रोसेस खत्म नहीं होता, राइट? सो टीएल प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, गोज थ्रू अ नंबर ऑफ फेजेस और आज हम इन्हीं फेजेस के बारे में बात करेंगे विच कैन बी आस्क्ड इन योर पेपर. सो व्हाट आर दीज 3 phases? देयर आर 3 phases ऑफ टीचिंग. The first phase, as I told you, is the phase of planning. This is called as the planning phase. जो एक टीचर करती है, planning phase. This phase is also called as pre-active because ये active होने से पहले ही हो रहा है. उसके बाद है हमारे पास execution या execution phase, or you can say interactive phase, or you may also called as an active phase. और क्या है? active phase. So pre-active, active जहां पे टीचर सबसे ज्यादा एक्टिव होती है, and at the end we have the evaluative phase or the evaluation phase. This is also the phase that is post-active in nature. ये कैसा होता है? पोस्ट एक्टिव इन नेचर होता है. सो टीचर बिफोर कमिंग टू द क्लास लुक्स एट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग कि मुझे क्या पढ़ाना है, प्लान्स व्हाट शी हैज टू टीच, देन शी मे लुक फॉर डिफरेंट टूल्स जिन्हें हम इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज कहते हैं या फिर और कोई टीचिंग एड्स टीचर डिसाइड करती है. Teacher also decides what kind of methods I will use in the class. This kind of teaching is called as what? This is called as the planning stage. Then we have the executional stage where teacher actually talks to the student, right? So here she is going to apply whatever she has decided. At this age she analyzes what she has taught. सो इस फेज के अंदर टीचर क्या कर रही है? इवैल्यूएशन कर रही है बच्चों का, मतलब टीचर ले रही है टेस्ट. अब वो या तो रिटन हो सकते हैं या वो ओरल हो सकते हैं या वो ऑब्जर्वेशन पे हो सकते हैं. टीचर क्या दे सकती है? फीडबैक दे सकती है एंड दिस इज डन फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, राइट? Evaluative phase is done for the improvement of the students. ठीक है? Improvement not only of the students but teachers also. अगर उन्हें समझ आया कि बच्चों को मेरी बात समझ ही नहीं आई है तो वो दोबारा क्या करती हैं? रीटीच करती हैं. दोबारा क्या करेंगी? रीटीच. So this is called as
The evaluative phase. Evaluative phase. Right? I hope this is clear. I hope this is clear and all of you understood it. So the first phase, when you identify the learning objectives, write it down. क्या क्या होता है planning stage में? Planning stage, and I'll give you certain points, okay? Planning stage is a stage where the teacher is dealing with herself. So this is before the class. Before the class starts, she is going to identify the objectives. Then teacher is going to plan activities. Teacher is going to create timeline. Timeline मतलब lesson plans. Lesson plans यहीं पर बनाती हैं टीचर. And टीचर क्या करेंगी? आपके कुछ इंस्ट्रक्शनल टूल्स के बारे में भी डिसाइड करेंगी. राइट? टीचर इज गोइंग टू शेयर वॉट एवर शी हैज डिसाइडेड विद द क्लास. टीचर क्लास के बच्चों के साथ सब कुछ शेयर करेंगी. एंड दिस इज द टाइम व्हेन दिस इज डन आफ्टर द क्लास इज ओवर. So teacher is going to do what? Teacher is going to reflect on the work. Whatever is taught, teacher is going to reflect on the things that she has taught. So these are the phases of teaching. The pre-active, the interactive and the post-active phase. These are the phases of teaching. Write it down. Okay. Phases of teaching. This was the first topic that was important. The first topic. Then there are the qualities of a good teacher. अब डिस्कस करते हैं qualities of a good teacher. ठीक है. Qualities of a good teacher. तो एज आई टोल्ड यू, टीचर क्लास में आती है और बच्चों के साथ इंटरैक्ट करती है, बात करती है. सो दिस मीन्स दैट देयर आर सर्टेन क्वालिटीज दैट अ टीचर शुड हैव. फर्स्टली, द टीचर शुड बी द सब्जेक्ट एक्सपर्ट. टीचर को पता होना चाहिए कि मुझे मेरे सब्जेक्ट में क्या पढ़ाना है. द टीचर शुड हैव गुड सोशल स्किल्स, जिसे हम और क्या बोलते हैं, सोशल competencies कहते हैं. Social competencies, use this word. She should have good personal competencies. Personal competencies मतलब the teacher should be punctual. खुद को तो अच्छे से ट्रीट करना ही पड़ेंगे ना. Teacher should be very punctual, should be very prudence होना चाहिए उनके अंदर, should be wise. कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक उनके अंदर विजडम होनी चाहिए. ये कुछ चीजें जरूरी है. कुछ पर्सनल एफिकेसी, सेल्फ एफिकेसी होनी चाहिए. सेल्फ एफिकेसी, अ गुड सेल्फ एस्टीम. These are the things that are important in a good teacher also. एक टीचर क्लास में तभी पढ़ा पाएंगी जब उनको अपने लिए कॉन्फिडेंस है. She should be motivated enough to teach the class, right? The teacher should also motivate the students. It is very important that teacher खुद को भी motivated रखे और students को भी motivate करे, right? So the responsibilities of the teacher are like this. Then she should have
टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंसीज, टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंसीज क्या होता है? आजकल के 21st सेंचुरी जमाने में जहां पे टेक्नोलॉजी और टूल्स का यूज किया जाता है अब एजुकेशन में, द टीचर शुड बी एक्सपर्ट इन डूइंग दैट ऑल्सो. द टीचर शुड बी एक्सपर्ट इन डूइंग दीज थिंग्स एज वेल. ठीक है, टीचर को पता होना चाहिए कि सही गलत क्या है, टेक्नोलॉजी कैसे यूज की जाती है. राइट इट डाउन. So there are certain student skills as well as there are teacher competencies, जो दोनों ही बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है. Written? Okay, then you may write certain other words also, जैसे teacher should have knowledge and skills to teach the class. Knowledge और skills होना बहुत जरूरी है. The teacher should have pedagogical skills. एक टीचर के पास pedagogical skills होनी चाहिए. Innovative skills होनी चाहिए बच्चों को सिखाने के लिए, मतलब creative skills होनी चाहिए. She should be very creative. Heuristic component उनके अंदर होना चाहिए, मतलब बच्चों को लीड करने के लिए वो हेल्प करे. Right? Then leadership qualities are important in a teacher. It is important that वो leadership दिखाएं, plus professional attitude. Professional attitude रखे, ये नहीं कि सिर्फ स्कूल के कामों में ही लग गई हैं. एक respectful environment बनाए क्लास का, और डाइवर्स पॉपुलेशन ऑफ स्टूडेंट्स को टीचर क्या कर सके, हैंडल कर सके. अलग अलग आने वाले स्टूडेंट्स होंगे, उनको भी सिखाए. द टीचर शुड बी अ सब्जेक्ट एक्सपर्ट, मतलब उनको कंटेंट अपना जो भी उन्हें पढ़ाना है पता हो क्या पढ़ाना है. इंस्ट्रक्शंस बहुत रेलेवेंटली देते हैं. टीचर अच्छे से क्या करे, फैसिलिटेट लर्निंग, अच्छे से बच्चों का हेल्प करना जानती हो. ओके, टेक्नोलॉजी हो चाहे कुछ भी हो. टीचर शुड ऑल्सो रिफ्लेक्ट ऑन देयर प्रैक्टिस. तो टीचर का भी एक्सपर्ट होना और पढ़ाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है. These are certain qualities that are needed in a good teacher. साथ में एक गुड लर्नर कौन होगा? इसी तरीके से अगर मैं लिख दूं एक गुड लर्नर की क्वालिटीज बताओ. दिस इज वेरी जनरल. कभी कभी पेपर में ऐसे जनरल सी चीजें आ जाती हैं, इसीलिए हम ये कर रहे हैं. अगर मैंने बोला क्वालिटीज ऑफ अ गुड लर्नर, तो एक लर्नर कैसे अच्छा है? एक लर्नर तब अच्छा है जब वो कैसा है, मोटिवेटेड है. मोटिवेटेड, और उनका लोकस ऑफ कंट्रोल. लोकस ऑफ कंट्रोल, व्हाट इज लोकस ऑफ कंट्रोल? लोकस ऑफ कंट्रोल मतलब उनका अपने ऊपर कंट्रोल है, और वो कैसा कंट्रोल है, इंट्रिंसिक है. मतलब बाहर से कोई जबरदस्ती उनको नहीं पढ़ा रहा, उन्हें पता है कि हाँ मुझे पढ़ना है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी. साथ में क्यूरियोसिटी ड्रिवन है, उनको बहुत क्यूरियोसिटी होती है न्यू चीजें देखने के लिए. वो अच्छे लिसनर्स हैं, अच्छे लिसनर्स हैं. अटेंशन स्पैन इज गुड, उनका अटेंशन स्पैन काफी अच्छा है. साथ में अच्छे क्रिएटिव लर्नर्स हैं जो कोलैबोरेटिव प्लस कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट में काम कर सकते हैं. मतलब दूसरों का सपोर्ट करना भी जानते हैं.
मतलब उनको अपना पीयर ग्रुप मेंटेन करना आता है। उनके अंदर क्या है, सेल्फ रेगुलेशन है। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, पेपर में आजकल यही आ रहा है, सेल्फ रेगुलेशन है, सेल्फ एफिकेसी है, और साथ में क्या है, सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम होता है अपने लिए खुद की इज्जत, अपनी रिस्पेक्ट करना, सेल्फ रिस्पेक्ट होना इज सेल्फ एस्टीम। एफिकेसी इज रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर वर्क और अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। मतलब मैं इंग्लिश में एफिकेसी रखती हूं लेकिन मैं अपनी रिस्पेक्ट नहीं करती, तो ये क्या हो गया, सेल्फ एस्टीम लो है लेकिन एफिकेसी हाई है। ये यूजीसी नेट में भी इस बारी पेपर में आया डायरेक्टली इसके बारे में। सेल्फ रेगुलेशन होता है उनके अंदर, सेल्फ रेगुलेशन, क्यूरियोसिटी होती है, अच्छे से सुनते हैं, पेशेंस होता है, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, ये नॉर्मल चीजें होती ही हैं। ओके राइट। नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्नर्स, जो पेपर में पहले बहुत आया करता था पर अब पता नहीं, अब बहुत टाइम से नहीं आ रहा है वैसे। टाइप्स ऑफ लर्नर्स, बट यू शुड नो दिस। सो बेसिकली लर्नर्स, there can be multiple types of learners, always remember, and learners हमेशा अपनी skills के according बनते हैं। so there are multiple types of skills also। so एक person थे फ्लेमिंग, फ्लेमिंग ने एक मॉडल दिया जिसे हम कहते हैं वार्क मॉडल। क्या कहते हैं, वार्क मॉडल। उन्होंने कहा दैट देयर कैन बी मल्टीपल स्किल्स और उसको यूज करके मल्टीपल लर्नर्स बन सकते हैं। जैसे वार्क में वी स्टैंड्स फॉर विजुअल, ऑडिटरी, रीडिंग, राइटिंग, एंड दिस इज काइनेस्थेटिक। सो ये क्या बोलते हैं, ये क्या बोल रहे हैं, दैट लर्नर्स या तो बहुत अच्छे हो सकते हैं कुछ देख के सीखने में, तो जब ये लोग मूवीज देखते हैं ना ज्यादा टाइम तक याद रहता है। कुछ लर्नर्स होते हैं जो जब सुनते हैं कोई चीज तो बहुत अच्छे से रिटेन कर सकते हैं, तो पॉडकास्ट सुन के सीख लेते हैं। कुछ लोगों को आदत है अपने नोट्स बना के लिखने की, तो वो लिख कर, पढ़ कर, बोल कर सीखते हैं। एंड सम पीपल यूज देयर ओन, अब ये हैंड तो नहीं लग रहा है, ठीक है, अपना खुद के हैंड से काम कर कर सीखते हैं। इस तरीके के लर्नर को बोलते हैं हैंड्स ऑन लर्निंग। हैंड्स ऑन लर्निंग मतलब खुद से करके सीखना, जो टर्म किसने कॉइन करी है, जॉन डेवी ने, जॉन डेवी ने कॉइन करी है, ठीक है। सो ये है हमारी स्किल्स, और इन स्किल्स के बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्नर्स हो सकते हैं। इन फैक्ट देयर इज दिस पर्सन हैरोल्ड गार्डनर, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। he said that there are 9 types of intelligence like spatial, auditory। तो पर्सन अलग अलग तरीके का इंटेलिजेंस लेवल रख सकता है, एंड देयर इज नो स्टूडेंट हु इज स्टूपिड इन द क्लास। ऐसा कोई भी नहीं है जो क्लासरूम में क्या हो, स्टूपिड हो या नहीं जानता हो कि सही क्या है। हर लर्नर अपने आप में एक इंपॉर्टेंट लर्नर है। सो I'll show you। ठीक है, सो इनका ये कॉन्सेप्ट था मल्टीपल इंटेलिजेंस का। इफ यू कैन सी, इन्होंने इस तरीके से मल्टीपल इंटेलिजेंसेस की बात करी है। या सो दिस इज, आई होप दिस इज क्लियर ऑल्सो। इन्होंने कहा कि स्टूडेंट मल्टीपल इंटेलिजेंसेस रख सकते हैं। आई जस्ट डाउनलोड दिस पिक्चर एंड पुट इट देयर।
ताकि सब लोगों को जब क्विकली रिवाइज करना हो आप इसे कर सकते हो। ठीक है, सो ये वाली फोटो देख लेना याद करने के लिए कि इंटेलिजेंस कैसी हो सकती है। विजुअल इंटेलिजेंस हो सकती है, स्पेशियल वर्बल हो सकती है, लॉजिकल हो सकती है, मैथ्स में अच्छे हो सकते हो, नेचुरलिस्टिक हो सकते हो, काइनेस्थेटिक हो सकते हो, रिदमिक हो सकते हो, इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल। सो देयर कैन बी मल्टीपल टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस दैट अ पर्सन कैन हैव। ठीक है, सो टोटल 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेस इन्होंने दी है। टोटल 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेस इन्होंने दी है और इन 8 की 8 टाइप्स के बारे में यू कैन सी फ्रॉम हेयर, राइट। उस तरीके से हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्नर्स देखना स्टार्ट किया। नाउ अ लर्नर कैन बी समवन हु इज वेरी एक्टिव, ऐसे भी लर्नर्स होते हैं, प्लस पैसिव लर्नर्स भी होते हैं। द वन who participates in the class is an active learner, and one who does not participate in the class is a passive learner, okay, passive learner. So अगर टर्म आ जाए एक्टिव पैसिव तो ये भी पता होना चाहिए। देन द learners can be field independent or they can be field dependent. फील्ड इंडिपेंडेंट, यहां पे फील्ड का मतलब क्या है, फील्ड हेयर मींस क्लासरूम। तो कुछ बच्चे फील्ड इंडिपेंडेंट है, मतलब क्लास प्लस टीचर की इनको नीड नहीं है। दे आर सेल्फ सफिशिएंट टू स्टडी ऑन देयर ओन। दे आर पर्सन हु कैन स्टडी अकॉर्डिंग टू देमसेल्व्स। सो वो सेल्फ रेगुलेटेड होते हैं और अपने आप से पढ़ाई करते हैं। ऐसे लर्नर्स को कहते हैं फील्ड इंडिपेंडेंट। लेकिन फील्ड डिपेंडेंट लर्नर बाकी सब के साथ साथ पढ़ते हैं, मतलब अपने पीयर ग्रुप के साथ पढ़ते हैं। इन लोगों के लिए टीचर प्लस क्लासरूम प्लस क्लास में कराया जाने वाला सिलेबस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरीके के लर्नर को हम कहते हैं फील्ड डिपेंडेंट, जो क्लास पे डिपेंड करते हैं, टीचर पे डिपेंड करते हैं। और ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। ये है इंडिपेंडेंट। दे आर हाईली इंडिपेंडेंट। राइट दिस डाउन। ठीक है, सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्नर्स हो सकते हैं, एक्टिव एंड पैसिव। सो दिस मीन्स दैट देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आ जाता है अब, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। तो दैट मीन्स अगर टीचिंग इतना इंपॉर्टेंट है तो लर्निंग भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। देयर आर सर्टेन करेक्टरिस्टिक्स दैट आर नीडेड व्हेन इट कम्स टू लर्निंग। कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमेशा होती हैं। दीज करेक्टरिस्टिक्स, लर्नर्स करेक्टरिस्टिक डिफाइन द एस्पेक्ट सच एज द पर्सोना, द एकेडमिक, द सोशल, द कॉग्निटिव सेल्फ विच मे इन्फ्लुएंस हाउ दे लर्न। ऐसे कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो बताते हैं कि किस तरीके से वो लर्न कर सकते हैं और बेटर बन सकते हैं। जैसे कि अगर वो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट करेंगे,
एक्टिव इन्वॉल्वमेंट करेंगे तो बेटर सीख पाएंगे, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे टीचर के साथ। तो कुछ लर्नर्स बहुत ज्यादा गोल ड्रिवन होते हैं, जितना ज्यादा वो गोल के बारे में सोचेंगे, फोकस रहेंगे, वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। देन कुछ लर्नर्स कंटिन्यूअस होते हैं, और लर्निंग हमेशा कैसी होनी चाहिए, कंटिन्यूसली होनी चाहिए, राइट। सम लर्नर्स आर ऑल्सो इंडिविजुअलाइज्ड, some are individualized. This means that they like to do things on their own. It is nothing wrong in it. Some like to do it with interaction and some are interactive in nature. दोनों में से कोई भी गलत नहीं है, right? So learning becomes an active process, an emotional process. Learning is an active process. It is an emotional process. Emotions भी involve होते हैं, active भी करना पड़ता है. It is constructive process. आप बहुत चीजें खुद ही construct करते हो. It is a constructive process. It is a situated process. आपको कहीं ना कहीं एक point of locus of control रखना पड़ता है. साथ में it is also a social process. Learning also is a process that involves all of these things. Learning में भी इस तरीके के प्रोसेस आते हैं, ओके। राइट, write this down. ठीक है, नाउ लेट अस ऑल्सो टॉक अबाउट 3 more types of learners. So a learner, यहीं पर लिख सकते हैं, चलो यही लिख लेते हैं. So learners can also be, learners can also be what? They can be young learners. जब आप बहुत छोटे होते हो तो आप किस पे डिपेंड करते हो, तो आप टीचर पे डिपेंड करते हो. फिर आप बन जाते हो adolescence learner. It is the time period of storm and stress. Storm and stress का टाइम पीरियड है. धीरे धीरे होमोफिलिक नेचर, दोस्त ज्यादा पसंद आते हैं. उसके बाद आप क्या बन जाते हो, अपने लिए स्ट्रॉन्ग बन जाते हो, और बाद में आ जाते हो आप एडल्ट लर्निंग करने. तो एडल्ट लर्निंग को टीचर क्या चाहिए, टीचर यहाँ पे चाहिए ही नहीं, टीचर की नीड ही नहीं होती है. यहाँ पे टीचर क्या बन जाती है, फैसिलिटेटर बनती है, और यहाँ पे टीचर क्या करती है, एकदम साथ साथ चलती है. सो दीज आर ऑल्सो डिफरेंट काइंड ऑफ लर्नर्स. ये क्या है, डिफरेंट तरीके के लर्नर्स हैं, ओके. सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग के अंदर थोड़ा सा और चीजें पढ़ें, थोड़ा सा और पढ़ेंगे. सो देयर इज, इफ यू टॉक अबाउट अ लर्नर, when you talk about a learner, you see that a social development of a learner is very important. Social development of a learner is very important, and this is seen in an adolescent learner. Young learners तो बिल्कुल टीचर की बात कर सुनते हैं,
अडोलेसेंट थोड़ा सा फिर भी सोशल डेवलपमेंट की तरफ देखते हैं। यहां पे वी सी दैट उनकी आइडेंटिटी फॉर्मेशन होती है। वी सी द आइडेंटिटी फॉर्मेशन ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन here. We also see that there is a lot of peer influence. बहुत ज्यादा peer influence भी आता है, लेकिन खुद से करने का मन करता है तो there is increased, खुद से सारे डिसीजंस लेना चाहते हैं, increased autonomy. There is increased autonomy because ये अपने पेरेंट्स पे अब डिपेंडेंट नहीं है. Gradually, these people also get emotional development. धीरे धीरे इनका इमोशनल डेवलपमेंट भी होने लगता है. In emotional development, they understand the essence of risk taking. हर चीज खुद से नहीं की जा सकती. Risk taking is very important. Also, their emotions are very heightened emotions होते हैं. जब ये adolescent एज में ही होते हैं, इनके इमोशंस प्यूबर्टी हिट की होती है, बहुत पीक पे होते हैं. ठीक है. सेंसिटिविटी टू सोशल वैल्यूज इज ऑल्सो देयर. Sensitivity to social values or cues is seen, and gradually they will move towards cognitive development. Gradually these adolescent people, adolescent children move towards cognitive development. Cognitive development क्या होता है, पेपर में बहुत बार आता है. So cognitive development is when you know the power of abstract thinking. जब आपको abstract thinking आने लगे, you think beyond concrete. जब आप beyond concrete सोचते हो, उसे हम abstract thinking कहते हैं. You also get to know what is metacognition. What is metacognition? The capacity of thinking about your own thinking. The capacity of thinking about your own thinking is called as metacognition. Also, you learn creative power. और यहां पे आपको क्या समझ आता है? क्रिएटिव थिंकिंग भी समझ आती है. क्रिएटिव थिंकिंग भी समझ आती है. ग्रेजुअली यू बिकम एडल्ट. सो एडोलेसेंट्स में ये सब होता है. जब आप एडल्ट बन जाओगे तो चीजें चेंज हो जाती हैं. तब आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बन जाओगे. तब यू आर सेल्फ रिलायंट. यू कैन डू थिंग्स योर सेल्फ. You understand your differences. So when you become an adult, things gradually change. What are the things that you see changing? जब आपका cognitive development होता है, तब you move one step further when you are an adult. You do problem solving. आप खुद से ही problem solving करते हो. You draw from experiences. तो आप अपने एक्सपीरियंस से सीखते हो, क्योंकि टीचर तो यहाँ है नहीं. और धीरे धीरे यू विल अंडरस्टैंड दैट आपका पोटेंशियल डिक्लाइन हो रहा है. जब आप एडल्ट हो रहे हो, लर्न करना चीजें मुश्किल हो रहा है. हियर यू अंडरस्टैंड दैट हर किसी के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते ही हैं. सबके अंदर क्या होते हैं? इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटेलिजेंस, ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनालिटी, on the basis of their preferences, and on the basis of their experiences plus their background. क्योंकि उनके मम्मा पापा, उनका घर, उनका कल्चर, ये भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है. राइट. They also understand that learning के लिए कुछ इंटरनल फैक्टर्स की नीड होती है हमें, प्लस कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स की नीड होती है.
लर्न करने के लिए कुछ एक्सटर्नल और कुछ इंटरनल फैक्टर्स की नीड होती ही है। कौन से फैक्टर्स हैं जो इंटरनल हैं? जैसे कि मोटिवेशन चाहिए तभी आप लर्न करोगे, आपको सेल्फ एफिकेसी चाहिए, ताकि अगर सेल्फ एफिकेसी है तभी आपका सेल्फ एस्टीम बिल्ट हो सकता है, तभी सेल्फ एस्टीम बिल्ट होता है। ऑल्सो आपकी प्रायर नॉलेज कैसी है वही डिटरमाइन करती है आपकी आने वाली नॉलेज को। सो यू कैन नॉट डिनाई दैट योर प्रायर नॉलेज, अभी तक जितना आपने सीखा वो सब कभी हेल्प नहीं करेगा, राइट? ओके, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कुछ सोशल फैक्टर्स, आपका बैकग्राउंड, योर फैमिली, राइट? दीज आर द थिंग्स दैट आर देयर। आपका कल्चर, आपके मेथड्स आप कौन से यूज कर रहे हो, मेथड्स, आपका कल्चर, दीज आर द थिंग्स जो बाहर से भी बहुत इन्फ्लुएंस लाते हैं कि आप कैसे पढ़ रहे हो और क्या क्या आपको समझ आ रहा है, राइट? इंपॉर्टेंट है ये सब कुछ जो हमने आज पढ़ा। सो दिस ब्रिंग्स मी टू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आजकल पेपर में बहुत ज्यादा आ रहा है, दैट इज मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन का टॉपिक। सो मेटाकॉग्निशन इज नॉलेज ओनली। ये क्या बता रहा है? नॉलेज के बारे में ही बात कर रहा है। सो वी विल अंडरस्टैंड अबाउट नॉलेज। यूजीसी नेट में भी यही आ रहा है सब कुछ, आपके पेपर में भी यहीं से ही क्वेश्चन आने के मैक्सिमम चांसेस हैं। Okay, so there are different types of knowledges that are there. There are different types of knowledge. अलग अलग तरीके की नॉलेज हो सकती है। कैसी हो सकती है? There can be multiple types of knowledge, like there can be knowledge that is called as, so there can be explicit knowledge, then there can be implicit knowledge, there can be tacit knowledge, procedural knowledge, then there can be declarative knowledge। अब पहले जैसा नहीं आता है टीचिंग एप्टीट्यूड, अब ये सारी चीजें ज्यादा आती हैं। Then there can be posterior knowledge and there can be a priori knowledge, right? So there can be these 5 types of knowledge and we'll study about these types of knowledge one by one, and all of them are very very important. So what exactly is knowledge? Knowledge क्या होता है? The knowledge, basically, simply put, knowledge is the aggregation or the acclamation or the assimilation of facts, skills, understanding. तो knowledge क्या है? knowledge एक तरीके का assimilation है, assimilation of facts या फिर skills या फिर आप बोल सकते हो facts, figures, किसी चीज की अंडरस्टैंडिंग या बहुत ज्यादा किसी चीज के बारे में अंडरस्टैंड कर लेना। सो इट इज द एसिमिलेशन ऑफ फैक्ट्स, स्किल्स एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अलग अलग तरीके की नॉलेज हो सकती है। नॉलेज हो सकती है एक्सप्लिसिट।
Explicit knowledge is the knowledge covering topics that are easily or systematically document and share out a scale that we think of as structured information. When explicit knowledge is there, it should be well managed. It helps the company or anyone to make better decisions. These types of explicit knowledge is the traditional kind of knowledge जो आपको मिलती है. So explicit knowledge ऐसी knowledge है that can be written, है ना, जो आपको आउटसाइड मतलब बुक्स के अंदर स्ट्रक्चर्ड तरीके से मिल जाएगी. किसी भी चीज के बारे में एक्सप्लिसिट नॉलेज होना, गूगल किया आपको नॉलेज मिल गई. मतलब एक तरीके का इनके पास डेटाबेस है, इसका डेटाबेस है, इन्हें पता है कि क्या सही है क्या गलत है, डॉक्यूमेंट किया जा सकता है, स्ट्रक्चरिंग की जा सकती है. इम्प्लिसिट नॉलेज इज एसेंशियली लर्न्ड स्किल्स और नो हाउ. तो मतलब किसी भी तरीके की लर्न्ड स्किल्स या फिर नो हाउ पता होना, कैसे कुछ खुद कर सीखना चीजों को. When you apply this in specific knowledge, you gain it. So, it is gained by taking explicit knowledge and applying it in specific situation. So, जब आप explicit knowledge को use करते हो, you gain experience के through. आपको एक तरीके का experience होता है और इस knowledge को हम implicit knowledge कहते हैं. Implicit knowledge. Then you have tacit knowledge. This knowledge is intangible knowledge that can be difficult to explain in a straightforward way, such as things that are often understood without necessarily being said and often very personal and cultural. So this type of knowledge is informal, learned with experience over time. आप ये कैसे सीखते हो? जब आप experience लेते हो over time, तब आप ये चीजें सीखते हो. जैसे अपने खुद के कल्चर के बारे में या फिर कुछ कस्टम्स के बारे में आपको पता लगता है. छोटे थे तो हंसते थे, लेकिन आप समझ आने लगा कि ठीक है ये चीजें कुछ जरूरी हैं. स्पेसिफिक सिचुएशन से यू अंडरस्टूड दीज थिंग्स, राइट. ऐसे कोई बैठ के आपको सिखा नहीं सकता. और ये डिफिकल्ट टू ट्रांसफर भी होती है. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रांसफर. आप खुद ही सीखते हो ये सारी चीजें. ओके. 10. Declarative knowledge is the knowledge which can also be understood as propositional knowledge. Declarative को propositional knowledge भी कहते हैं. It refers to static information, facts that are specific to a given topic. So एक subject matter के बारे में, एक subject के बारे में कोई specific knowledge ले लेना is called as declarative knowledge. Procedural knowledge focuses on how, behind which things operate and is demonstrated through one's ability to do something. So इधर हम लोग क्या देखते हैं, आपने कैसे किया, how. So this means you use your skills. आप skills करते हो use, उसको apply करते हो, तो जो knowledge gain होती है उसे procedural knowledge कहते हैं. प्रोसीजरल नॉलेज, ऑपरेशनल नॉलेज है ये एक तरीके की. ओके. देन अ पोस्ट प्रायरी नॉलेज इज अ सब्जेक्ट टाइप ऑफ नॉलेज दैट इज गेन फ्रॉम इंडिविजुअल एक्सपीरियंस. और ये आते हैं इंडिविजुअल के एक्सपीरियंस से. और प्रायरी नॉलेज इज डिलीवर्ड, Priori knowledge is the opposition to post priori knowledge. It is and is gained independent of individual. So this knowledge is often shared through logical reasoning. और ये कैसे मिलती है आपको? Logical reasoning से आपको already मिल जाती है. ये easy है, इतनी ये सबको पता होना चाहिए. This is the most basic thing.
ओके, देन आई विल एड 2 मोर जो पेपर में कभी कभी आती है. देयर इज ऑल्सो वन नॉलेज कॉल्ड एज कंडीशनल नॉलेज. Conditional knowledge. Conditional knowledge is about when and what conditions are useful. जो चीज useful है एक चीज के लिए. And last but not the least, we have metacognition knowledge. Metacognition, it is the ability to control one's cognitive process. अपने खुद के कॉग्निटिव प्रोसेस के बारे में सोचने की नॉलेज को, अपने बारे में सबसे अच्छे से जानना. अगर आप अपने आप को सबसे अच्छा जानते हो तो आपको क्या है, मेटाकॉग्निशन है. इट इज कॉल्ड एज मेटाकॉग्निशन. So metacognition is thinking about your own thinking and it is essentially called as critical thinking. इसको हम और क्या बोलते हैं? It is essentially the art of critical thinking. Critical thinking. Right? Because here your role is to evaluate yourself. तो यहां पे आप क्या करोगे? सेल्फ रेगुलेशन. यहां पे आप क्या करते हो? सेल्फ रेगुलेशन. ये टर्म्स याद रखना, सेल्फ रेगुलेशन करते हो. ओके. मेटाकॉग्निशन भी बहुत जगह पे आपने ये भी देखा होगा. ये क्या करेंगे? मेटाकॉग्निशन नॉलेज को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. अब यूजीसी नेट में यहां से आया था. पहला बन गया डेक्लरेटिव, फिर आ गया प्रोसीडरल, देन कंडीशनल. ऐसे भी आ जाता है पेपर में. सो डेक्लरेटिव नॉलेज इज अबाउट वंस सेल्फ एज अ लर्नर एंड व्हाट कैन. सो नॉलेज अबाउट वन सेल्फ. डेक्लरेटिव इज नॉलेज अबाउट वन सेल्फ. Knowledge about oneself as a learner and what can influence one's performance. मतलब one's performance को बेटर करने के लिए चीजें सोचना is declarative. Procedural होता है कुछ skills आना ताकि आप heuristic learning कर सको. Heuristic learning मतलब आपको किसी तरीके की strategies पता हो better perform करने के लिए. Conditional knowledge is about when and what conditions are useful. और ये है when plus what conditions are useful. जैसे मुझे पता है that I am good with learning things. तो मुझे पता है कि मेरा declarative knowledge क्या है? मुझे पता है मैं चीजें जल्दी याद कर लेती हूँ. Procedural है, मुझे पता है कि मैं याद कर पाती हूँ जब मैं लिख लिख के पढ़ती हूँ उनको. रीडिंग राइटिंग वाली बच्ची हूं मैं. एंड कंडीशनल, जब मैं सुबह उठ के जल्दी पढ़ूंगी तब मुझे ज्यादा याद होगा. इस तरीके से मेटाकॉग्निशन को रेगुलेट किया जा सकता है. इज दिस क्लियर? ठीक है. इज दिस क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर. इजी है बट मेटाकॉग्निशन पेपर में बहुत बारी देखा गया है अब. ठीक है. So metacognition जो नॉलेज है दैट इज नोइंग अबाउट योर सेल्फ, इसका एक साइकिल है. क्या साइकिल है? मेटाकॉग्निशन की साइकिल है. सबसे पहले क्या साइकिल है मेटाकॉग्निशन की? So in metacognition you do what? Metacognition is vital for students to thrive in any career, life going process के अंदर बहुत जरूरी है growth mindset के लिए. Because from here
You learn about your own mistakes and you learn from your own mistakes. अपनी मिस्टेक से सीखना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है इनके लिए, हर बच्चे के लिए इनफैक्ट. तो ओके, डाउनलोड ही नहीं हुआ. नहीं ना, दिस इज समथिंग वी हैव ऑलरेडी सीन. नहीं, ठीक है, चलो. तो डाउनलोड नहीं हो रहा, कोई नहीं, हम यहां से देख लेते हैं. तो मेटाकॉग्निशन क्यों जरूरी है? मेटाकॉग्निशन जरूरी है ताकि आप बड़े होके क्या करो, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सको. प्रॉब्लम सॉल्विंग करो, साथ में और क्या करो, क्रिटिकल थिंकिंग. साथ में और क्या हो, क्रिटिकल थिंकिंग हो. ये मेटाकॉग्निशन आपके लिए लेके आता है. ऑल्सो देयर इज दिस, यू कैन से, एक तरीके का रोड मैप है जो आप फॉलो कर सकते हो मेटाकॉग्निशन के लिए. या इफ यू हैव मेटाकॉग्निशन यू ऑलवेज अप्लाई इट इन दिस मैनर. सो इट्स लाइक अ प्रोसेस, इट्स लाइक अ साइकिल दैट इज देयर. सो व्हाट हैपेंस, you assess the task, you evaluate the strengths and the weaknesses, you plan the approach, you apply strategies, and you also reflect. So this reflection on what you have done is metacognition cycle. It is your metacognition cycle. Okay, I hope this is clear. So metacognition में you do planning, then after planning आप मॉनिटर करते हो अपनी ही चीजों को with the help of metacognition. So thinking about thinking. एंड मेटाकॉग्निशन की कुछ स्ट्रैटेजीज होती हैं. मेटाकॉग्निशन की स्ट्रैटेजीज है जैसे यू ऑलवेज ट्राई टू वेट ठीक है. सो देयर वाज वन पिक्चर जो मुझे आपको दिखानी थी बट अभी वो मिल नहीं रही है. कोई नहीं, एनीवे. सो सेल्फ रेगुलेशन करना जरूरी है एंड सेल्फ रेगुलेशन इटसेल्फ इज अ काइंड ऑफ मेटा कॉग्निशन. सो दिस वाज समथिंग आई वांटेड टू टॉक अबाउट. ठीक है. ठीक है. सो इससे सब याद रख लेना. मेटाकॉग्निशन से क्या होता है, मेटाकॉग्निशन से अगर आप एक्सपीरियंसेस में यूज करते हो मेटाकॉग्निशन, सो आप अपने एस्टिमेटेड एफर्ट्स ले सकते हो. आप डिफिकल्टी को पहले ही एनालाइज करते हो, फेमिलियर हो जाते हो अपनी चीजों से और प्रॉपर करेक्ट सॉल्यूशंस ले पाते हो विद अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. आप अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग कर पाओगे अपने परफॉर्मेंसेस की तो यू विल बी कंसीडर्ड समवन बेटर. आप स्ट्रैटेजीज यूज करते हो. देयर इज दिस सेट ऑफ अवेयरनेस. जब भी मेटाकॉग्निशन होता है सो आपका अवेयरनेस बहुत हाई हो जाता है. अवेयरनेस अबाउट योर सेल्फ. दिस मीन्स दैट अगर आप सेल्फ अवेयर हो तो आपके पास क्या है, सेल्फ एफिकेसी है. सेल्फ एफिकेसी एंड दिस सेल्फ एफिकेसी इज मतलब आप सेल्फ रेगुलेशन जानते हो. मैं पेपर में कम नंबर लेके आई इस बारी, मैंने खुद को खुद से ही संभाल लिया. ऐसा कहते हैं ना, मैंने संभाल लिया, अगली बार ज्यादा अच्छा करूंगी. दैट इज सेल्फ रेगुलेशन. अपने आप एनालाइज किया, सेल्फ एफिकेसी इंक्रीज हुई ताकि आपका क्या कहते हैं हम, मोराल बूस्ट होता है ना, मोराल बूस्ट हो गया मेरा. तो दिस मोराल बूस्ट इज सेल्फ एस्टीम बूस्ट होना. तो सेल्फ एस्टीम होता है आपकी खुद की रिस्पेक्ट. दिस इज सेल्फ रिस्पेक्ट. लेकिन सेल्फ एफिकेसी इज प्रोफिशिएंसी. प्रोफिशिएंसी और वो कैसे आती है, जब आप थिंकिंग के बारे में, अपनी थिंकिंग के बारे में दोबारा थिंक करते हो.
मतलब सेल्फ रेगुलेट करते हो। तो ये टर्म्स याद रखना, सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ एस्टीम, दीज आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ वी ऑल नो दैट व्हेन इट कम्स टू टीचिंग, बहुत क्विक से ये टॉपिक करेंगे, बहुत पहले आया करता था ये टॉपिक। देयर आर सर्टेन हेल्पिंग बिहेवियर्स इन टीचिंग, कुछ हेल्पिंग बिहेवियर्स होते हैं टीचिंग के, एंड कुछ कैसे बिहेवियर्स होते हैं, कुछ की बिहेवियर्स होते हैं, एंड देयर आर सर्टेन की बिहेवियर्स इन टीचिंग। तो हेल्पिंग बिहेवियर्स हेल्प करते हैं टीचर की बिहेवियर्स मेन बिहेवियर्स है जो टीचर को फॉलो करने होते हैं। तो ये हमारी की है, ये हमारी की है, इससे हम क्या ओपन करेंगे, हमारा लॉक ओपन करेंगे, है ना। सो ये सबसे असेंशियल है, इनको किया तो हमारे पास क्या होगा, अच्छे से लर्निंग हो पाएगी, तभी टीएल प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस विल बी सक्सेसफुल, जब आपने की बिहेवियर्स और हेल्पिंग बिहेवियर्स साथ में यूज किए हैं। So there are 5 key behaviors, 5 helping behaviors that the teacher follows in the class so that the class is fully structured. ठीक है, ताकि अच्छे से टीचर क्या कर सके, पढ़ा सके। उसको हम अभी लिख लेते हैं। So helping behaviors and key behaviors of an effective teacher, ताकि ये क्यों होता है, ताकि अफेक्टिव क्लासरूम हो पाए, ताकि अफेक्टिव क्लासरूम बन पाए, इसी के लिए हम ये की बिहेवियर्स और हेल्पिंग बिहेवियर्स का यूज करते हैं। सो व्हाट आर दीज 5 की बिहेवियर्स आर देयर। द फर्स्ट इज lesson clarity. It is the responsibility of the teacher that the lessons are clear to every child, otherwise वो आगे नहीं बढ़ सकती हैं। Then there should be instructional variety. अगर टीचर एक ही चीज बारी बारी पढ़ाती रहेंगी, एक ही टूल यूज करके, no one will be interested in studying. So variety होना, टीचर की पेस, टीचर का एक्टिविटीज, मटेरियल्स, इनोवेशन, जेस्टर्स, रिवॉर्ड्स देना, ये सब चीजें यहाँ इन्वॉल्व होता है। Then we have teacher task orientation. टीचर टास्क ओरिएंटेशन मतलब अगर बीच में कोई इंटरप्शंस आ गई, बीच में क्या आ गई, कोई इंटरप्शंस या कोई ऑब्स्टेकल आ गया, किसी बच्चे ने परेशान कर दिया टीचर को, तो टीचर को उसे क्या करना आना चाहिए, हैंडल करना आना चाहिए। दैट इज टीचर टास्क ओरिएंटेशन। देन इंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस, टीचर को इंगेज करना चाहिए बच्चों के साथ। किसी भी तरीके की अगर क्लासरूम में कंफ्यूजन होती है तो टीचर को उसे क्या करना चाहिए, एलिमिनेट करना चाहिए। And fifth is student success rate. Student success rate. जब स्टूडेंट्स का सक्सेस होगा तभी टीचर का भी सक्सेस होता है। साथ में वी हैव हेल्पिंग बिहेवियर, helping behaviors. These helping behaviors are using student ideas and contributions, structuring, questioning. Fourth is probing. And fifth, last but not the least, is teacher affect. मतलब रिलेशनशिप कैसा है टीचर और लर्नर के बीच में।
ओके, ठीक है। सो दीज आर योर these are what? These are your key behaviors and helping behaviors. इसके बारे में बात करते हैं। तो जब टीचर क्लास में पढ़ा रही है तो टीचर चाहती हैं कि बच्चों को हर चीज क्लियर हो। वट एवर आई एम टीचिंग, जो भी मेरा क्या है टॉपिक है, वो बच्चों को क्लियर होना चाहिए। इसी के लिए तो एक टीचर आई है ना, तो वो टीचर हमेशा क्लियर करके रखती है। देन इंस्ट्रक्शनल वेराइटी, टीचर ज्यादा से ज्यादा क्या यूज करती है, ज्यादा से ज्यादा टूल्स यूज करती है ताकि बच्चों को समझ आए। टॉपिक क्लियर होना चाहिए, टूल्स क्लियर होने चाहिए, वैरायटी होनी चाहिए ताकि बच्चे बोर ना हो। टीचर टास्क ओरिएंटेशन, मतलब कोई भी ऑब्स्टेकल आएगा तो उसे हैंडल कर लेना चाहिए। इंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस, टीचर को बच्चों के साथ इंगेज होना चाहिए, प्रॉपर कंफ्यूजन मिटाते हुए चलो। स्टूडेंट सक्सेस रेट, मतलब जितना ज्यादा स्टूडेंट का सक्सेस है, बच्चों का सक्सेस है, टीचर का सक्सेस है। इफ यू गाइस क्लियर योर एग्जाम, ये मेरा सक्सेस है। Using student ideas and contribution while the teacher is talking to you, she also will use your ideas. मैं आपसे स्टोरी सुना रही हूँ, आपने कुछ बताया बीच में, उसके थ्रू मैंने कुछ पढ़ा दिया, तो इट इज इंगेजमेंट। स्ट्रक्चरिंग मीन्स मुझे मेरी क्लास को वेल प्लान करके लाना है। अगर मेरी क्लास वेल प्लान नहीं है तो बच्चों को समझ ही नहीं आएगा। जैसे पीपीटी टीचर बना के लाती है, प्लान्ड है। क्वेश्चनिंग, बच्चों से इंटरैक्ट करना, क्वेश्चंस पूछना बहुत जरूरी है। प्रोबिंग होता है कोई क्वेश्चन पूछूं और आप ही आंसर दो, तो आपके आंसर्स को यूज करके मैं पढ़ाऊं, तो क्या करता है प्रोबिंग, क्यूरियोसिटी इंक्रीज कर देता है बच्चों के अंदर, बच्चे ज्यादा क्यूरियस हो जाते हैं। टीचर इफेक्ट होता है कि बच्चे और टीचर के बीच में एक बहुत अच्छा एमिकेबल रिलेशनशिप होना चाहिए और उनको बहुत प्यार से एक दूसरे के साथ डील करना चाहिए। राइट, सो दीज आर योर की बिहेवियर्स एंड हेल्पिंग बिहेवियर्स। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको ढंग से करना ही है। ठीक है, आज तो हम बहुत ज्यादा टॉपिक्स कर रहे हैं बिकॉज इतना टाइम नहीं है, पेपर तो जस्ट आने ही वाला है। ठीक है, फिर आ जाते हैं एक और टॉपिक पे। कौन सा कलर यूज करें? ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक टॉपिक है डोमेन्स ऑफ लर्निंग। अभी हमने देखा दैट लर्निंग कितनी अलग अलग तरीके से इन्वॉल्वमेंट लेती है। सोशल एक्टिविटी, इमोशनल एक्टिविटी है लर्निंग, और डिफरेंट एस्पेक्ट्स यूज करती है लर्निंग। सो लर्निंग में डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स का भी यूज होता है। अब ये कौन से डोमेन है? लर्निंग हैज 3 डोमेन्स। फर्स्ट इज द कॉग्निटिव डोमेन, then we have the affective domain, and the last we have psychomotor domain। मतलब जब भी बच्चे को कुछ सीखना है, इन तीनों डोमेन्स का यूज करना इंपॉर्टेंट है। कॉग्निशन इज योर ब्रेन, कॉग्निशन इज योर ब्रेन, कुछ ऐसा ही होता है ना ब्रेन, ठीक है, ये आपका क्या है ब्रेन। तो अगर आप अपने ब्रेन को यूज करो तो उस तरीके की लर्निंग को हम क्या कहते हैं? कॉग्निटिव स्किल्स कहते हैं। मतलब आप क्या सीख रहे हो? बहुत ही फैक्चुअल स्किल्स सीख रहे हो, फैक्चुअल स्किल्स सीख रहे हो, नॉलेज का गेन कर रहे हो। इस तरीके की डोमेन को कॉग्निटिव डोमेन कहते हैं। कॉग्निटिव डोमेन, ब्रेन यूज करके, दिमाग यूज करके, मतलब थिंकिंग यूज करके, थिंकिंग, ब्रेन यूज कर रहे हो मतलब थिंकिंग कर रहे हो ना, उसे यूज करके आप जो भी चीजें डिसीजंस लेते हो, दैट इज कॉग्निटिव डोमेन। जब आप अपना दिल यूज करते हो, क्या यूज कर रहे हो? अपना दिल यूज करते हो, अरे आई थॉट ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। जब आप अपना दिल यूज करते हो इस तरीके की थिंकिंग को, मतलब आपने अपना हार्ट यूज किया,
दैट मीन्स आपने अपने इमोशंस का यूज किया। जब आप अपने इमोशंस का यूज करते हो, इस तरीके की थिंकिंग को हम अफेक्टिव डोमेन कहते हैं। अफेक्टिव डोमेन। जब यू यूज योर ओन हैंड्स, बहुत गंदे हैंड बने हैं पर कोई नहीं, जब आप अपने खुद के हैंड्स या अपनी लेग्स यूज करते हो, मतलब आप काइनेस्थेटिक एक्टिविटी का यूज कर रहे हो, हाथ पैर चला रहे हो, मतलब आप अपनी बॉडी मूवमेंट करके सीख रहे हो, उस तरीके की थिंकिंग को या उस तरीके की लर्निंग को हम क्या कहते हैं? साइकोमोटर डोमेन कहते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू वेरियस साइंटिस्ट, यू कैन नॉट लर्न with only one domain. All these three domains are important to learn a particular thing. तीनों ही डोमेन साथ साथ चलते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, आज की क्लास अटेंड करनी थी, सुबह बहुत ज्यादा ठंड थी, दिल्ली में तो 7 डिग्री टेम्परेचर है। तो मेरे दिमाग ने बोला कि मेरे को नहीं जाना, बहुत ठंड है, पर पढ़ाना तो है, छुट्टी ले लूंगी तो कल भी मुझे ही पढ़ाना है, तो टीचर्स क्या छुट्टी लेंगी, तो चलो। मेरे ब्रेन ने बोला, इमोशंस भी आए, बहुत थकी हुई हूँ, अभी तो जिम भी जाना है, घर का भी काम करना है, थोड़ा सा मम्मी की हेल्प करनी है, माई मदर इज अ टीचर, सो जा चुकी है मम्मा, तो टाइम तो स्पेंड कर नहीं पाऊंगी, चलो एक काम करेंगे, सैटरडे संडे कर लेंगे ज्यादा टाइम स्पेंड। अफेक्टिव डोमेन आया, उठी, नहाई, अपना काम किया, यहां पे आई, that is psychomotor domain. So for doing anything you also need these domains. अब आ जाते हैं लर्निंग पे। तो मैंने कल एक नई बुक पढ़ी, उस बुक के अंदर मैंने कुछ सीखा। उस बुक को पढ़ने के लिए कुछ एडेड नॉलेज, कुछ मेंटल स्किल्स, कुछ मेंटल कैपेसिटी इंप्रूव करी मैंने, कुछ नया सीखा, सम न्यू फैक्ट, सम न्यू नॉलेज, तो मेंटल स्किल्स। उसे पढ़ के मुझे अच्छा भी लगा, तभी मैं उसे कंटिन्यू कर रही थी पढ़ना, अदरवाइज बंद करके रख देती बुक तो वो हो गया मेरा अफेक्टिव डोमेन। साथ में बुक खोल के पढ़ना भी तो होता है, एफर्ट भी तो लगाने होते हैं, बुकमार्क भी तो रखना होता है उसके अंदर, जब रुक गए हो, खोला है, बॉडी तो यूज कर रहे हो, दैट इज साइकोमोटर। सो फॉर डूइंग एनीथिंग यू ऑलवेज यूज दीज 3 डोमेन्स। नाउ दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। इसको हम ब्लूम्स टेक्सोनॉमी भी कहते हैं, बिकॉज इट इज बेंजामिन ब्लूम, इट इज बेंजामिन ब्लूम, जिन्होंने बहुत साल पहले सबसे पहले कॉग्निटिव डोमेन के बारे में बात की थी। तो सबसे पहले कॉग्निटिव के बारे में बात हुई, फिर अफेक्टिव, फिर साइकोमोटर, और ब्लूम ने ही कॉग्निटिव के बारे में बात करी। तो बहुत सारे साइंटिस्ट क्या करते हैं, इंटरनेट पे भी यही हो रहा है कि अफेक्टिव भी इनकी है और साइकोमोटर भी इनका है, लेकिन ये ट्रू नहीं है। तो कुछ कॉग्निटिव के बारे में इन्होंने बोला, कुछ इनके स्टूडेंट एंडरसन ने बोला। तो कॉग्निटिव डोमेन 2 टाइम्स रिवाइज हो बना है एक तरीके से, 1 टाइम बाय बेंजामिन ब्लूम एंड द नेक्स्ट टाइम बाय एंडरसन, हिज ओन स्टूडेंट। अफेक्टिव डोमेन ऐड हुआ, फिर साइकोमोटर डोमेन हुआ। तो देयर आर 3 डोमेन्स, देयर आर 3 डोमेन्स ऑफ लर्निंग, जो ऑफन हम ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के नाम से उसे हम जानते हैं। द फर्स्ट इज अबाउट थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, एंड दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? दिस इज कॉल्ड एज योर कॉग्निटिव डोमेन। ये डाउनलोड ही नहीं हो रहा है ना? ओके, हो गया, ठीक है। सो इधर हम सीख रहे हैं तीनों डोमेन्स। आई होप दिस इज विजिबल, नहीं है तो बता दूंगी मैं। सो यहां पे हमने पढ़ा हमारा पहला डोमेन, द फर्स्ट डोमेन, दैट इज द कॉग्निटिव स्किल का डोमेन। यहां पे हम थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखते हैं। इन द नेक्स्ट डोमेन अफेक्टिव डोमेन में हमारे इंटरपर्सनल स्किल्स भी इंप्रूव हो जाती हैं और हमारा इमोशनल ग्रोथ होता है। तो यहां पे आप क्या करते हो? प्रॉब्लम सॉल्विंग। हियर प्रॉब्लम सॉल्विंग हैपेंस,
हियर व्हाट हैपेंस, आपका ग्रोथ होता है, कैसा ग्रोथ, इमोशनल ग्रोथ। तो इंटरपर्सनल रिलेशंस भी अच्छे बनते हैं। आप क्या यहाँ पे अर्न कर लेते हो, रिलेशनशिप्स भी अर्न करते हो। एंड लास्ट में इज साइकोमोटर। साइकोमोटर में आप क्या करते हो, एक्सपीरियंस से सीखते हो, तो एक्सपीरियंस आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये तीनों डोमेन है। सो अब हम धीरे धीरे पढ़ते हैं इन तीनों डोमेन के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉग्निटिव डोमेन के बारे में। सो कॉग्निटिव डोमेन सबसे पहले बेंजामिन ब्लूम ने दिया। किसने दिया, बेंजामिन ब्लूम ने दिया। और बेंजामिन ब्लूम ने दिया इन 1984 समथिंग। उसके बाद 2001 में इनके ही स्टूडेंट थे एंडरसन, इन्होंने इसको क्या कर दिया, रिवाइज कर दिया। सो कॉग्निटिव डोमेन हमने कितनी बार देखा, 2 टाइम्स देखा। ठीक है, कॉग्निटिव डोमेन चाहिए मुझे पहले तो। ओके, दिस इज माय फेवरेट पिक्चर। ये जब भी मुझे पढ़ना है या पढ़ाना है तो यही पिक्चर यूज करती हूँ। सो कॉग्निटिव डोमेन, अरे ठीक है, ये ले लेते हैं। फिर इस जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, इसको आप क्या करते हो, कॉम्प्रीहेंड करते हो। इसे आप क्या करते हो, कॉम्प्रीहेंड, समझने का ट्राई करते हो, समझने का ट्राई करोगे। साइकिलिंग की, तो धीरे धीरे पहले आप साइकिलिंग की नॉलेज लेते हो, फिर आप उसको अंडरस्टैंड करते हो। ठीक है, पेडल ऐसे करना है या ऐसे चलना है, फिर उसे अप्लाई करते हो, फिर एनालाइज करते हो, फिर सिंथेसिस, फिर इवैल्यूएट। लेकिन इन्होंने नाउन यूज करके दे दिया था ये बेंजामिन ने, तो लोगों को इससे रिलेट करना मुश्किल हो गया था। तो वर्ब फॉर्म में इनके स्टूडेंट एंडरसन ने दिया 2001 में। ठीक है, 2001 के अंदर, और उन्होंने बोला मैं वर्ब यूज करूंगा, प्लस लास्ट के 2 जो ब्रैकेट्स हैं उनको चेंज करेंगे पिरामिड के। सबसे पहले आप कोई चीज लर्न करते हो और इस तरीके से आपके पास कुछ न्यू क्रिएट हो जाता है, आपको कोई नई चीज समझ आ जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसी तरीके से याद रखना। इसका क्रोनोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है, ये क्रोनोलॉजी भी सेम होना चाहिए। फर्स्टली ये भी याद रखना, दे आर द लोअर लेवल स्किल्स, ये लोअर लेवल की स्किल्स है, मतलब ये कोई भी बच्चा कर लेता है, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन। लेकिन एनालाइज, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन कैसी स्किल्स हैं, हायर ऑर्डर। मतलब ये कौन सा डोमेन हो गया, अफेक्टिव डोमेन हो गया। अफेक्टिव डोमेन में हम कैसे करते हैं, फर्स्टली यू रिसीव एन इंफॉर्मेशन, अरे दिस इज चेंजेस वाला ओनली। जस्ट अ मिनट, इससे आपको ही बहुत इजी होगा, इसलिए मैं ये कर लेती हूँ इस तरीके से।
ठीक है, यहां पे आप क्या कर रहे हो, सबसे पहले एट दिस लेवल यू रिसीव अ न्यू इंफॉर्मेशन। इधर अफेक्टिव लेवल की बात हो रही है, तो हम बात करते हैं दिल की, है ना। अफेक्टिव लेवल दिल की बात हो रही है, दिल की बात करेंगे, दिल के बारे में। तो सपोज करो आपका नया नया बना है कोई बॉयफ्रेंड, ठीक है, नया नया ताजा ताजा नया रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है। तो हुआ क्या कि हमारा मोहन सीता से मिला, तो प्यार क्या हुआ, रिसीव हुआ, आपको प्यार रिसीव हुआ। धीरे धीरे मोहन को लगा कि अब मुझे सीता से ज्यादा बात करनी है, तो उसने उस प्यार को रेसिप्रोकेट किया। क्या किया, रेसिप्रोकेट किया, दोबारा उसको भी फोन कॉल करना स्टार्ट किया। फिर उसने हमारी सीता की बहुत वैल्यू करना स्टार्ट किया। अब सोने से पहले बात जरूर होती है, नहीं तो नींद ही नहीं आती। क्या करने लगे, वैल्यू करने लगे, मतलब रिस्पेक्ट करने लगे। मम्मी को भी बता दिया कि मेरे पास एक गर्लफ्रेंड है मम्मा। उसके बाद आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन। अब मोहन को पता है कि सीता को पाने के लिए अच्छा MBA कॉलेज में पढ़ाई करके अच्छी जॉब लेनी पड़ेगी। तो आपने इस प्यार को अपनी लाइफ में क्या किया, ऑर्गेनाइज करा, ऑर्गेनाइज करा। फिर आपका करेक्टर चेंज हो गया, मतलब आपकी पर्सनालिटी ही चेंज हो गई। यहां क्या हुआ, योर पर्सनालिटी चेंजेस। एक और चीज सीखते हैं, मैंने आपको सिखाया द वैल्यू ऑफ पंक्चुअलिटी। तो आपने ये नई नॉलेज, पंक्चुअल होना, पंक्चुअलिटी की स्किल आपने आज सुना मेरे बारे में, इसके सुना इसके बारे में, आपने इसको अप्लाई करके देखा, धीरे धीरे अपनी लाइफ में रिस्पॉन्ड करके देखा इसकी तरफ। जब आपने इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करके देखा तो ये काफी सक्सेसफुल होने लगा आपके लिए, आपको अच्छा लगने लगा कि ट्रेन नहीं छूट रही, क्लास नहीं छूट रही, काम सब कुछ टाइम पे हो रहा है। आपने इस चीज की वैल्यू करने लगे आप, ठीक है, वैल्यू करने लगे। आपने लाइफ में क्या किया, अप्लाई करके इम्बाइब कर लिया। अब आपकी पर्सनालिटी में आ गया है, तो आपका करेक्टर चेंज हो गया। सिमिलरली यही यहां पे भी किसी चीज को रिसीव करना इज अ लोअर लेवल स्किल। ये क्या है, लोअर लेवल की स्किल है, ठीक है। लेकिन ऑर्गेनाइजिंग और करेक्टराइजिंग करना आर हायर ऑर्डर, ये हायर ऑर्डर स्किल है। पेपर में आता है लोअर और हायर बताना। सो आप कह सकते हो दैट आप रिस्पॉन्डिंग और रिसीविंग एक तरीके से लोअर लेवल है, और वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड करेक्टराइजेशन हायर ऑर्डर की स्किल्स है, हायर ऑर्डर की स्किल्स है, ठीक है। इज दिस क्लियर, ये सबको समझ आ गया होगा। लास्ट में आ जाते हैं साइकोमोटर डोमेन पे, मतलब अप्लाई करोगे तब समझ आएगा। अब तो साइकोमोटर डोमेन, बहुत सारे लोगों ने साइकोमोटर डोमेन के बारे में बात किया, बिकॉज रिलेटिवली ये बहुत न्यू कॉन्सेप्ट है। कैसा कॉन्सेप्ट है, न्यू कॉन्सेप्ट है। सो साइकोमोटर डोमेन जब ब्लूम ने दिया था, एक चीज और याद रखेंगे, जब बेंजामिन ब्लूम ने दिया तो उन्होंने इस तरीके से बात की, सेट, गाइडेड रिस्पॉन्स, मैकेनिज्म, ये ब्लूम्स टेक्सोनॉमी ने बोला था, ठीक है। लेकिन उसके बाद एक पर्सन थे, एक इंपॉर्टेंट पर्सन, डेव, एक इंपॉर्टेंट पर्सन थे डेव, उन्होंने अपनी टेक्सोनॉमी अलग से दे दी थी, उन्होंने अपनी टेक्सोनॉमी अलग से दी थी, इधर ही साइकोमोटर का ही। तो हम उसे भी पढ़ेंगे, बिकॉज पेपर में वो आता है, पेपर में पुराने वाला आता भी नहीं है, ठीक है। तो जब बेंजामिन ब्लूम ने बात की तो उन्होंने ये टेक्सोनॉमी बीच में स्टार्ट हुई थी कि आपके पास सेट है, गाइडेड रिस्पॉन्स। सेट मतलब आपके पास कुछ टूल किट है, जैसे सपोज आपको कुछ नया सीखना है, आपको कोई टूल किट है,
और आपको टायर चेंज करना सिखा रहे हैं, टायर चेंज करना सिखा रहे हो, तो आप टूल किट पढ़ के गाइडेड रिस्पॉन्स देते हो, उसके बाद आप मैकेनिज्म की तरह उससे काम करते हो, धीरे धीरे आपके रिस्पॉन्सेस क्विक होने लगते हैं, आप अडेप्ट कर लेते हो और फिर आपको क्या करना आ जाता है, व्हील चेंज करना आ जाएगा, टायर चेंज करना आ जाएगा, है ना। तो कोई भी चीज जब आप सीख रहे हो, जैसे कॉफी बनाना, कॉफी बनाना आपने सीखा, सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शंस मिली, फिर आपने गाइडेड रिस्पॉन्स दिया, इंस्ट्रक्शंस को यूज किया, काम किया, कुछ आपकी हैबिचुअल होने लगे, आप उससे अडेप्टेशन हो गई, फिर अब आपसे अच्छी कॉफी कोई बनाता ही नहीं है, ठीक है। इस तरीके से होता है साइकोमोटर डोमेन। लेकिन साइकोमोटर डोमेन को 1975 में डेव ने चेंज कर दिया, उसने बोला कि ये टर्म्स यूज होनी चाहिए। हम सबसे पहले किसी को इमिटेट करते हैं, चलो सपोज आप बनना चाहते हो एक एक्टर, आपको बोला कि जब वी मेट की गीत बन के दिखाओ, है ना, ऑलरेडी उसका कॉपी करके दिखाओ, करीना कपूर बन के दिखाओ, तो आपने वही लाइंस जाके बोल दी, अरे इतनी भी सुंदर नहीं हूं, छोड़ो मेरा हाथ, ठीक है, वही लाइंस आपने जाके बोल दी, तो आपने क्या किया, इमिटेट कर दिया। धीरे धीरे आप कैसे अच्छे एक्टर हो, आप उन चीजों को मैन्युपुलेट करोगे, तो आपने किया मैन्युपुलेशन, आपको वो स्किल के अंदर क्या मिलने लगा, प्रिसेशन मिलने लगा, मतलब आप एक्सपर्ट बनने लगे, क्या होने लगे, एक्सपर्ट बनने लगे। उसके बाद आपका आर्टिकुलेशन, आपका एक्सपर्टीज इंक्रीज हो गया और अब वो नेचुरल बन गया, अब ये आपका खुद का स्टाइल बन गया है जो आप फॉलो करते हो। तो धीरे धीरे क्या किया, डेव ने भी यही बोला कि हम ऐसे ही सीखते हैं, एक बच्चा सबसे पहले इमिटेट करता है अपनी मदर को, फादर को, फिर मैन्युपुलेट करता है, अपने हिसाब से चीजें सीखता है, फिर प्रिसेशन, फिर आर्टिकुलेशन, फिर नेचुरलाइजेशन। सो psychomotor domain, the third domain, affective domain, as well as the cognitive domain. These are the three domains that when they come together, the child learns or a person learns. Okay? ये तीनों ही बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। आई होप सबको ये तीनों डोमेन समझ आ गई है, वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, सब लर्न भी करेंगे। और यहां पे भी ऐसा ही है, यहां पे भी सेम है, आपका इमिटेट करना लोअर ऑर्डर स्किल है, लोअर ऑर्डर स्किल्स है, लेकिन आर्टिकुलेशन एंड नेचुरलाइजेशन क्या है, हायर ऑर्डर, हायर ऑर्डर स्किल है। तो बच्चे मैन्युपुलेट और इमिटेट कब करते हैं, जब वो छोटे हैं, तो यहां पे क्या हो गया, मेमोरी लेवल। प्रिसेशन कब आता है, जब वो अंडरस्टैंड करने लगते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल। आर्टिकुलेशन एंड नेचुरलाइजेशन कब आएगा, जब वो लाइफ में अप्लाई करेंगे, दैट इज द रिफ्लेक्टिव लेवल। सो ये क्या हो गया आपका, मेमोरी लेवल। ये क्या बन गया, अंडरस्टैंडिंग। और यहां क्या हो गया, रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है, इजी, बहुत इजी। टाइम देती हूं नोट करने के लिए सारी चीजों को। तो यहां से स्टार्ट करते हैं, हेल्पिंग बिहेवियर्स एंड की बिहेवियर्स से। एंड दीज डोमेन्स,
ठीक है, सो आई गेस वी हैव नोटेड ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड यू गाइज अंडरस्टूड ये सारी चीजें, तो सबको समझ आ गया है व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड टीचर, गुड लर्नर, फेजेस ऑफ टीचिंग क्या है, ये भी है जो आप अच्छे से पढ़ोगे तो पेपर में ये सारी चीजें आ जाती हैं जो हमने किया है। तो हम टीचिंग पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देंगे बिकॉज एनवायरनमेंट के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो ज़्यादा टाइम एनवायरनमेंट पे देंगे। आई थिंक कल की क्लास में टीचिंग वाइंड अप करने का ट्राई करेंगे, कल या परसों की क्लास में। उसके बाद वी विल बी स्टार्टिंग विद एनवायरनमेंट। आई होप यू गाइज आर विद मी, सबको समझ आ रही है सारी चीज़ें। ये खत्म करने के बाद आपका जीके का सेक्शन मेरे लिए खत्म हो जाएगा, मतलब मेरा पार्ट। उसके बाद हम लिटरेचर की क्लासेस लेंगे, दैट इज समथिंग जो अलग से, अगर आपका कोर पेपर इंग्लिश है तो हम वो स्टार्ट करेंगे। एनीवे, ये आई होप सबको समझ आ गया। ये 3 हमारे पास क्या है, फेजेस हैं टीचिंग के, ये भी आपने पढ़ लिया होगा अभी तक, क्योंकि हम ये ऑलरेडी भी कर चुके हैं, बट हाँ ये आपके लिए नया होगा। ये चीजें अगर आपने ज्यादा कॉग्निशन के बारे में नहीं पढ़ा है तो ये चीज आपके लिए थोड़ी नई है, इसके ऊपर प्लीज फोकस देना। तो आई लीव यू हेयर, यहाँ पे छोड़ देती हूँ टाइप्स ऑफ नॉलेज, इसको नोट कर लेना। आई विल आफ्टर 2 to 3 minutes वाइंड अप द, आई विल जस्ट क्लोज ऑफ द कैमरा, तब तक आप इसे नोट कर सकते हो। दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट, ये आपके और भी बहुत सारे पेपर्स में आती है, इसीलिए ही ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ओके, सो विद दिस आई विल वाइंड अप। Thank you. Have a wonderful day. I'll see you in the next class. Keep smiling, keep shining, and it is very cold, तो अपना ध्यान भी रखो. Bye bye.